with Vatsalas, or if you have Madhur Singaras, conjugal mood, absolutely Singaras. Then sadhu will take part in the stage of asakti dasa. Satsanga, Bhajanakriya, Anupati, Nishta, Ruchi, seven stages. When you come in the seventh stage, that time realize this. Otherwise not. Eh? So for this regard saying this. Asakti dasa means is bhajane ruchi or bhajaniya asakti. Asakti dasa, there two things are there. Bhajane ruchi. Ruchi means where so much taste will come and remembering pastimes of Krishna and chanting holy names, then Sarv and Guru, all kinds of taste will come. That is called bhajane ruchi. Or bhajaniya asakti, which that will be so much love and affection will come. So bhajaniya ruchi and bhajaniya asakti. But that asakti will be first and apply towards Guru, then coming to Krishna or Srimati Radhika. As like Vijay Kumar and Brajanath. Brajanath, he told, when I read Brajanath, he told, when I read Srimad Bhagavatam, then I have so much taste how Krishna is going to herding the cows with his friends, there these things. That time his Gurudev Bhajamar told, you have Sakkha Rash. Or Vatsala Rash is called. Vijay Kumar, he told, when I read Srimad Bhagavatam, that time so much taste will come, how to make the garland for Radha and Krishna under guidance of Lalita Sakhi. So this is the ruchi will come. This that means you are Madhurya Rasa. These things will, when sadhak will come in the stage of asakti rasa. So asakti rasa are two things. Bhajane ruchi or bhajaniya asakti. Understand? These are the things. So that means sadhane koribe jaha siddhi te paibe ta keval matra pakka apakka vichar. Mature and immature. Understand? This is just this the difference. In asakti is immature and in prem it's mature. Asakti is immature. If you are asakti dasa, if you are madhurya rasa, asakti also madhurya singaras katha will be so much attached with singaras katha. But asakti is apakva or apakva immature. क्या बोल रहे हैं अपक्का क्या Apakva. वो कह रहे हैं आसक्ति अपक्व दशा है. Then and that is called the immature that time, immature stage. Bhav dasa, then it will be realization will come. And asakti dasa, that is called the semblance coming, that is called abhas. Or bhav dasa, then you can direct realize. Understand this? Then prem dasa, then direct you can take darshan to Lord. And when you take darshan to Lord, when will come in the stage of prema dasa. So sadhan, why is this sadhan? Because Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Anupati, Nishta, Ruchi, Asakti. All these seven stages, that is called sadhan dasa. After sadhan, when sadhan will complete, then it will come in the stage of bhav. After bhav, then will come in the stage of prema dasa. So, you understand or not? Now again ask the same question. If you understand, then no need to ask again same question. and in the previous stage, like before asakti, what should be the meditation of the sadhak? Like what the sadhak? No. When only sadhak when will come in the stage of bhavdasa, that time he can meditate. And that will come of this, what is called, savabhike, natural, and spontaneously. Understand? That will manifest in your heart. Not in artificial.
it will come in spontaneously. Understand? This way. Actually, this is the process, not just the what is called imitate. This is the main thing in this. Because Bhagavad Nam, Roop, Gun, Lila, they get transcendental. And that time, what is automatically manifest in your tongue. Now you are chanting holy names, most of that is called Namaparad. Sometimes Namabhas coming, maybe. Sadai Namaparad, Sadai Namaparad, Kobu Namabhas. ये सब जानियो भाई कृष्ण भक्ति भाव. Parad means not taste coming, not love and affection coming. When love and affection coming, then spontaneous would be coming. You understand? This is the nature. How much rounds are you chanting? How much you also perform bhajan and sadhan? This is the process. How much you love and affection Guru and Krishna? Everything depends on this. And Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Anarthamriti, Nishtha, Ruchi and Asakti, step by step going this. Anartha Nivritti, when you free from all kinds of anarthas. Anartha means unwanted things. Anartha, which is, this is the process. How much you remove all your anarthas, especially lust, anger, enviousness, these things. I like Sukdev Goswami Pad. This is the highest example, you know. Sukdev Goswami Pad, when he ran towards the jungle, and some ladies they were taking birth. But Sukdev Goswami Pad no any vikar. So this is the process also. This when you think this thing, lakdi or ladki, understand? Wood or girl. When these types of mood will come. But sometimes you have to loka vyavahar. Loka vyavahar means worldly behavior. You cannot do the otherwise. If you don't know the worldly behavior, that time maybe offense will come. That is the process also. How to perform bhajan and sadhan. How is your mind also come in sattva guna? Sattva guna coming or not? Most of the gun coming is what the Good qualification. gunas coming, maya's gunas, mostly tama and raja guna. And sattva guna prasidata. Sattva guna will come, then mind will be calm and quiet. And tama guna jabe, sattva guna pave, hoyi be radha radasi. Bhaktivinoda Thakur. Tama guna jabe, when all your tama gunas, the mood of ignorance, remove from your heart. Then Sattva-guna will come. But this Sattva-guna also not the help to you to perform bhajan and sadhana. Just something also giving, you know. Not this way. Because Raja-guna and Tama-guna that is called destroy. Or egos, false egos coming. Last anger, that is calm growth coming from Tamaguna. Sattva-guna, there is some compassion coming. This is the thing coming. But this is also hard. Not for purpose bhakti. Understand? So Hari Nirguna Sakshat Pusa Prakriti Paraha. Lord Sri Hari, he is the beyond of gunas. So in the same way, sadhak will come in the same stage, beyond of Maya's three gunas, Trigunatit. This is the actual, this is the process, how to do this. So he is saying, Tama guna jabe, Sattva guna pave,
Hoibe Radha Dashi. Then you think I will become the maid servant Srimati Radhika, Radha Dashi. Now you are thinking I am Radha Dasa, one day Radha Dasa, then another day Maya Dasa. One day very peaceful mind, another day anger mind. And sometimes every time also anger mind. So, no, have to move, do bhajan and sadhana. Renarding, chanting holy names, then slowly this will come. Is that the level of Nistha? Asakti dasa. Nishtha is nothing. Asakti dasa. Because the Asakti dasa, that is called sadhan, high stage. And Shraddha to Asakti, all the sadhan stage, step by step going. And there are many also obstacles are coming. Loy, Vikshe, Apatipatti, Kosaya, Rasa Sadhan. Understand? Loy means sleepiness will come. Vikshe, distraction, mind distraction. Understand? Loy, Vikshe, Apatipatti, unable to concentrate your mind, your Istadev. That is called Kosaya. Loy, Vikshe, Apatipatti, Kosai. Kosai means is past bad impressions. That is called Kosai. Not so easy to remove. Many life you enjoyed many kinds of material sense gratifications. That kinds of is what? Impression in your heart also. Very sukshma, subtle way. You cannot see yourself. And especially also name, fame, reputation, la puja, pratishtha. Maybe you can remove lust, anger, not so easy, but maybe you can remove lust, anger, enviousness, but very difficult to remove the desire for name, fame and reputation. That is la puja, pratishtha, upasaka. These things. Then coming in the stage, that is called Kosa. Not so easy. Or then coming in Rasa Sadhan, during the time of bhajan and sadhan and chanting holy names, just enjoying the material sense gratifications, chanting holy names and mind going here. Your mind is going without ticket, without passport, without visa, and sometimes enjoying the material sense gratifications. This is the nature of it. What to do? So the 5 obstacles can here is called Loy, Vikshe, Apatipatti, Kosai and Rasasai. This is coming. So for the Bhaktivinoda Thakur, Tamo guna jabe, Sattva guna pabe, hoibe Radha. When your Sattva guna will come, then you will be thinking, oh, I want to become the maid servant Srimati Radhika, Radha Dasya. This is good, but not so easy to fix your mind. How were those 5 obstacles clear? By our endeavour and your mercy? Is it like that? Always no mercy. Your endeavors, then mercy will come. Only mercy is not mercy always coming. Everybody saying, okay, only mercy. Mercy is coming. Kripa. Kri means your chesta. Apa means you get. Just understand. Your endeavors, then you will get. This is the process. Your sadhan, then Lord's mercy will come. Or if you don't do sadhan, only think, oh, I want mercy. Well, mercy is coming. Always rain coming in where? On the top of the mountain. But water is not staying on the top of the mountain, going down.
And they say mercy is coming always. This is true. Yeah. So, understand? So our endeavors, just Is it possible when we chant Nam Aparad that we make less progress, like negative progress, because we're making Aparad? Or will we still make some progress? negative pressure what you do? What is the meaning that? You know what I'm saying? What do you, negative pressure means what? So, like going backwards, like if we make Aparad, then we hurt our spiritual endeavor. That is, if you committed offense, then you will go back. You know, car is what is called, when you start the engine, car, and also press the accelerator, you know car is going anywhere, move. But your what is called, ब्रेक के यदि वो ये करके रखे हैं, वो पीछे चला जाए. Reverse gear. हैं? Reverse. Handbrake लगा के. You understand? You are driving car or not? Yes. So what do you do? Forward. You are forward, but you the reverse, then going is here, back. Then back going, you don't know so where is the gadda hai. Who is behind you, don't some also hold. Then your car will go and jump and finish. Both also going. You go forward or you will go back. Both also wheels also spinning. But which way? Right way or Backward. wrong way? So, But we should keep chanting, right? Like no matter what. no, you chant holy names and try to give up all kinds of offenses. And this is the process also. And without chanting holy names and giving up the Nam Aparad, how possible? Improve your bhajan and sadhana. And bhajan sadhana this way. And you try to give up the Nam Aparad, 10 types of offenses, Dasavida Nam Aparad, Satang Ninda, and then never think Krishna Nam equals Shiva Nam, Guru Avagyan, dishonor to Guru. This is the process also. क्या लो? 33वें अध्याय के 37वें श्लोक में ना इस बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण के प्रति किसी भी गोप की कोई असूया भाव नहीं था, क्योंकि गोपियां वहाँ रहती थी. तो इसके उसमें एक प्रूफ दिया है यहाँ पे कि इसी अभिप्राय से युगांतर्गत अपनी प्रेयसियों के गोत्रवर्तक यानी पति गोपों के प्रति वरदान के प्रसंग में श्री विष्णु ने पद्म पुराण के सृष्टि खंड में सृष्टि खंड में उसमें बोला कि जिस समय नंदाती गोप लोग धरातल में अवतीर्ण होंगे उस समय मैं उनके बीच में निवास करूंगा और आप लोगों की कन्याएं मेरे साथ क्रीड़ा करेंगी. उस क्रीड़ा में किसी के चित्त में भी दोष रोष मात्सर्य कुछ भी नहीं रहेगा और भी स्वरूप के अर्थात प्रकृतिगत भाव में ही जो पूर्ण अर्थात असीम है उनके संबंध में किसी आगंतुक कारण को स्वीकार नहीं किया जा सकता. तो आगंतुक कारण किसको कहेंगे गुरुदेव, और ये युगांतर्गत किसको कहेंगे? यानी जुगांतर जुगांतर में दूसरी युग में कहते जुगांतर के युगांतरम जुगांतरम. आगंतुक कारण आगंतुक कोई नहीं आगंतुक कहा जाता है और अकस्मात कोई कारण आ गया. तो उसका क्या उदाहरण दिया गुरुदेव? जो पहले से निर्धारित नहीं था, पहले से कोई वस्तु निर्धारित नहीं था, वो अकस्मात आ जाता है. जैसे एक आगंतुक शब्द समझ लो, जैसे आप रसोई बनाया 5 व्यक्ति के लिए, घर में 5 व्यक्ति है? अच्छा, अकस्मात एक व्यक्ति आ गए. एक व्यक्ति जो आए वो आपको ये नहीं दे करके नहीं, समाचार नहीं कि दे करके आए, आपको नहीं बुला के, तो इसको क्या कहा जाता है? अचानक से आगंतुक कहा जाता है. माने जिसके अचानक एक व्यक्ति आ गया उसके आगंतुक कहा जाता है. ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं पद्म पुराण में, ये कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं, ये देखो मैं जब लीला आदि करूँगा, आप लोग जो हमारे साथ जो लीला आदि करेंगे, जो आगंतुक जो ऑब्स्टिकल्स जो आएगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप में ये यदि ऑब्स्टेकल्स नहीं आए, बाधा यदि नहीं आए, प्रेम संवर्धित नहीं होता है. इसलिए योग में उसी प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं. किसी कोई बीमारी हो
तो अब क्या करते, तो भगवान के पुकारते हैं। और जिसके बीमारी नहीं है क्या पुकारेगा, है? अथवा कोई बीमार हो अथवा बीमार नहीं हो भी भगवान के पुकारते हैं। तो ये जो बीमार है ना, ये क्या हो गया, आगंतुक। क्योंकि ये समझते गोपियां, जिस गोपियों के लिए यहाँ पर पद्म पुराण में कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ये समझते गोपियां कोई साधारण नहीं थी। ये सब श्रुतिचरी, मुनिचरी, ऋषिचरी है। हजारों साल तक वे लोग ने कठोर तपस्या आदि किया, शरीर को सुखाया समझते हो, ऐसे तप कष्ट सृष्टि आदि तप आदि किया। उनके हृदय में किसी प्रकार काम क्रोध की है ही नहीं है। काल हमने कहा था ना, वो क्या लीला, वास्तव लीला में कहा स्वयं भगवान कृष्ण गोपियों के क्या वर दिया, जाता वाला ये बालिकों आप लोग को मैं ये वर देता हूँ, ये आगामी शरद पूर्णिमा में आप लोग के साथ मैं रास विहार करूँ। क्यों ना, आप लोग के हृदय जो है अभी काम क्रोध आदि समस्त प्रकार की कसाय से निर्मुक्त हो गया है। जिसमें उदाहरण दे रहे हैं, भजिता कदिता धाना बीज न्यासाय होते। ऊपर से देखने में तो चावल है, माने धान है, ऊपर से देखने तो गेहूं है, किंतु उसके वो गेहूं व धान के यदि क्या बोलते हैं उबाल लिया जाए, गर्म पानी उबाल लिया जाए, तो उसके अंदर में बीज जो है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। देखने ऊपर तो साइज एक ही है। इसलिए कह रहे हैं जे आप लोग के हृदय में समस्त का काम क्रोध दूरीभूत हो गया है। इसलिए एक आगामी शरद पूर्णिमा में आप लोग के साथ मैं रास विहार करूँगा, क्योंकि जब तक काम क्रोध आदि रहे, प्राकृतिक काम क्रोध आदि रहे, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान तब स्वीकार करेंगे जब साधक के हृदय संपूर्ण रूप से काम क्रोध से मुक्त हो जाए। ये काम क्रोध से मुक्त होने के एक ही उपाय कर रहे, साधन भजन करते करते। इसलिए भगवान कह रहे हैं गोपियों की, ये समझते गोपियों की भी भगवान कह रहे हैं जे यदि कोई यदि क्या बोले ऑब्स्टेकल्स आ जाए, ये आप लोग मत सोचिए जो मेरे कर्मफल से आ रहे हैं। जीवों की बद्ध जीव के जो है तो होता है दुख कष्ट किस लिए आता है, और वो कर्मफल से। किंतु जो समस्त ऋषि लोग अभी गोपी शरीर धारण किया, उनके तो कर्म फल सारे कर्म ही उनके क्या हो गया, विनष्ट हो ही गया। उनका कर्माधिकार चला गया, कर्माधिकार सभी चला गया उनको, उनके कुछ भी नहीं रहा। तो वो जो दुख कष्ट आदि दिखा रहे हैं, इसलिए भगवान पहले कह रहे हैं देखो आप लोग मत सोचो जे हमारे कर्म के अनुसार आ रहे, तथापि भक्त क्या करते हैं, दई न करके हमारे पास आ रहे हैं। जैसे भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आमी विषयी दुर्जन सदा कामे रत को किछु नहीं मोरो है। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी और दईनाथ वही का भी कह रहे हैं, हे गोपीनाथ मैं सदा सदा काम क्रोध में पड़ा हूँ, आप मुझे कृपा। असुर सकल पाइल चरण विनोद रोहिला पड़े। आप तो असुरों की कृपा कर दिया, ठीक है, मुझे कृपा नहीं करोगे। ये कहीं कहीं जो मुक्त पुरुष आदि जो है लोक शिक्षा के लिए ये द्वैन आदि प्रकाश कर, इसलिए द्वैन बोधात्मिका कहा जाता है। क्या बोला, द्वैन आत्मबोधिका है। एक है संप्रार्थना मूलक, दूसरी है द्वैनात्मूलिका और एक लालसामयी। ये तीन प्रकार प्रार्थना के बारे में आपको जानना चाहिए है। क्या क्या बोला, व्हाट इट इज, संग प्रार्थना, जैसे स्वाभाविक रूप में प्रार्थना करना है, संग प्रार्थना करना है। मैं यज्ञ हूँ अथवा नहीं यज्ञ हूँ, प्रार्थना करते कर सकते हैं। हा देवी काकु वर गद गद याद वाचा जाचे निपत्ति भूवि दंडवद भुटार्थी अस्त प्रसाद मोदस जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणानां विदे। आपके गण में मुझे
स्वीकार कीजिए, संग प्रार्थना करें। दैन्य आत्मिका भी होता है? मत समनासी पापात्मा न अपराधी न कश्चन। दैन्य कह रहे हैं मेरे भांति संसार में पापी आपको कहाँ मिलेगा? है मतुल्लंग पापात्मा, हे प्रभु मेरे भांति ऐसे पापी आत्मा कहाँ आपको कहाँ मिलेगा? है आप तो सबकी कृपा करते हो। है मैंने सुना आप पापी को भी कृपा करते हो। देखो इसमें क्या कहते दैन्य आत्मिका आहार है। इतने साधन भजन करके भी भक्ति ठाकुर कैसे करे? हमारा जीवनो सदा पापी रहतो नहीं को पुण्य रोलेश। भक्ति ठाकुर की कोई पाप है तब देखिए हमारा जीवन सदा मेरे जीवन पूरा ये पाप में भरा हुआ है। मैंने किसी कोई कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जितना भक्ति हृदय में उदित हो गई, भक्ति के लक्षण यही प्रकार है अपना के कराहीन, माने अपने को दीनहीन करा देंगे। भक्ति के लक्षण आ जाए, हाय हमने तो कुछ भजन नहीं किया है। सभी करे भजन, सभी लोग भजन कर रहे हैं, मेरा भजन नहीं हो रहा है। न प्रेम गंध वस्ति हरे दरायो पी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरे हृदय में प्रेम नाम से कोई वस्तु नहीं है। सर्व दामोदर और कोई भक्त करने लगे प्रभु यदि आप कहो तो कहते हैं प्रेम के लक्षण क्या है? प्रेम के लक्षण तो आंखों से आंसू आ रहे हैं, रोमांच कंपास आपको दिखाई पड़ रहे हैं, प्रेम के लक्षण है ना? तो महाप्रभु कह रहे नहीं ऐसे नहीं। बोले मेरे आंख से जो आंसू देखते हैं ना, ये तो मैं ढोंग दिखाता हूँ, मेरे आंख में आंसू नहीं है। महाप्रभु न प्रेम गंधो उस्ते हरे दरायो। भगवान श्री के प्रति मेरे प्रेम नाम में कुछ तनिक मात्र भी नहीं है। यदि प्रेम होते तो मैं तड़प तड़प के शरीर छोड़ देता, क्योंकि प्रेम के लक्षण क्या है? प्रेम इस शरीर को धारण कर नहीं पाते। फिर महाप्रभु दूसरी उदाहरण दे रहे, देखो ये मछली जो है, मछली कहाँ रहती है? पानी में रहता है, और पानी में जो आनंद से वो क्या करते हैं? तैरते हैं। देखा ना वो कहाँ पर बलदेव प्रभु के बलदेव कुंड में हम देखा थे, रोटी के टुकड़े कितने बड़े बड़े मछली ऐसे देखो छलांग लगा रहे हैं, देखा ना आपने? तो उसे महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं। और वही मछली के यदि पानी से ऊपर उठा दिया जाए, वो मछली क्या करता है? तड़प तड़प के प्राण छोड़ देता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं न प्रेम गंधोस्ति हरे दरायो। वास्तव में मेरे हृदय में कोई प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होते तो मैं शरीर छोड़ देता। जिस प्रकार मछली पानी से ऊपर उठाने पर वो क्या होता है? शरीर छोड़ देता, तड़प तड़प छोड़िए। क्योंकि शास्त्र में लिखा है प्रेम किसी के हृदय में उत्पन्न हो तो प्रेम क्या करते? शरीर को धारण करने। कितने दैन्य महाप्रभु है। वही दीनो दयाद्र नाथ मथुरा नाथ कदा अवलोक। ये सब श्लोक के महाप्रभु स्वयं उच्चारण किए। तीन आदमी छोड़ करके चौथा जन कोई नहीं किया। एक श्रीमती राधिका और दूसरी माधवेंद्रपुरी पाद और तीसरी चैतन्य महाप्रभु। वही दीनो दयाद्र नाथ मथुरा नाथ कदा अवलोक। हे कृष्ण आप वृंदावन के छोड़ करके आप तो मथुरा के नाथ बन गए हो, माने मथुरा के राज बने, मथुरा राज बने। वही दीन दयाद्र नाथ हो, आप तो सबके प्रति दया करते हो। क्या हम लोग की दया नहीं करोगे? दो प्रकार अर्थ दिखे, एक दक्षिण भाव और एक वाम भाव। ये कहते हैं वही दीन दयाद्र नाथ मथुरा नाथ कदा अवलोक से, कब आप दर्शन देंगे बताओ? ब्रह्म इति, मेरे मन सदा शब्द भ्रमित हो रहे हैं, आपके बिना हम रह नहीं सकते। हे कृष्ण आप दर्शन। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितास्मि भुवोर दिशोर में। कितना सुंदर श्लोक महाप्रभु का। वही नहीं, हे देव हे दैत चैतन्य
चैतन्य चैतामृत इसके वर्णन हो रहे एक एक अर्थ लेके। आप तो देव हो, दिव्यति क्रीडयति, आप सबके हृदय में आप विराजमान क्रीड़ा करते रहते हो। अथवा देव हो, दीप धातु प्रकाशमान, आपके इतने सुंदर जो रूप, आपके रूप देख करके सभी आकृष्ट हो जाता है। ये देव कृष्ण के इतने जिंदे स्वरूप जो है, जो स्वरूप के देखते ही सभी क्या हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसलिए ये देव अतः दिव्यति क्रीडयति, आप सदा सर्वदा सबकी हृदय में क्रीड़ा करते रहते हैं। जो जैसे रस के भक्त होते हैं, जो शक्कर रस के भक्त होते हैं, उनके निकट सुखाओं के रूप व्यवहार आदि करते हैं। जो वात्सल रस के भक्त होते हैं, उसके वात्सल रस की क्रिया आदि करते हैं। जो माधुर्य सिंगार रस के भक्त होते हैं, उसके निकट आप तो ही करते रहते हैं। देखते ये देव, ये द्वैत, ये द्वैत, द्वैत माने अत्यंत प्रिय हो, दयति दियते दयति, आप प्रेम के देने वाले हो, सबके भरण पोषण करने वाले हो। क्या ये अभागिनी गोपियों की, आप अभागिनी गोपियों की तो नहीं भी आप दया नहीं करोगे? गोपियां इतने से रो रही है, ये भाव एक्चुअल श्रीमती राधिका, ये देव, ये द्वैत, ये भुवनैक बंधु, आप तो समस्त पृथ्वी सभी के आप मित्र हो, सब आप लोग के मित्र मानते। भुवन माने पृथ्वी के, सबका आपको मित्र मानते हैं। क्या हम लोग का पृथ्वी के अंदर में नहीं है क्या? हम लोग तो पृथ्वी में अंदर है। कहते हे देव, हे दैत्य, हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण, आप सबके जो है क्या करते हो, आकर्षित करते हो अपने रूप गुण लीला माधुर्य के द्वारा, सबके चित्त को आप आकर्षित करते रहते। कर्षयति आकर्षति नश्च निवृत्त वाचो प्रेम ददाति, जो समस्त जीव के जो है आकर्षित करके और संसार की समस्त माया मोह के छिन्न करके, नष्ट करके, प्रेम बद्धंचति, प्रेम प्रदान करते रहते। क्या हम लोग नहीं करोगे? कितने दैनात्मिक का देखो, जो गोपियां स्वाभाविक रूप में क्या देते, कृष्ण के गाली देते हैं, चोर बदमाश लंपट, और अभी कितने दैनात्मिक क्या कर, कहते हे देव, हे दैत्य, हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, आप तो चपल है। चपल माने चंचल है, वायु रीव सुदुष्करम, एंड हवा के भांति आप कभी इधर कभी उधर चलते हैं। आप इतने चपल हैं। अथवा अचपल, आप स्थिर हो जाते हो। दो अर्थ तो लगा देते हो। एक है चपल माने चंचल, और उसमें और लगा देने से अचपल माने आप स्थिर हो जाते हैं। देखो गोपियां इसी प्रकार, हे कृष्ण हे चपल, हे कृष्ण हे चपल, हे करुणैक सिंधु, आप तो करुणा के समुद्र हो। हे कृष्ण हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हाँ हाँ कदानुभवितास्मि भुवोर्दिशोर में, क्या एक बार हम लोग के आंखों की पलक में आओगे क्या? माने दर्शन दोगे क्या? आपके दर्शन के लिए हम तरसते रहे, क्योंकि यहाँ पर गोपियों की एक विशेष वैशिष्ट्य क्या दिखा रहे हैं। गोपियों की जो है संतना से कोई काम नहीं चलता रहता है, वो साक्षात रूप में गोविंद दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन की तीन होता है, एक होता है आत्म, और एक चाक्षुष, और एक ना एक मानस, और एक चाक्षुष साक्षात दर्शन। क्या बोला? एक होता है आत्मा में दर्शन होता है, आत्मा दर्शन कहा जाता है। भगवान के दर्शन को आत्मा दर्शन कहा जाता है। भजन करते करते भगवान जैसे जैसे रस के भक्त होते हैं, उसके भक्त के आत्मा के अनुसार, रस के अनुसार वो दर्शन देते हैं, इसका आत्मा दर्शन कहा जाता है। और दूसरे है मानस पट में दर्शन देते हैं, चिंतन आदि के द्वारा उनके दर्शन देते हैं। इसमें भी अनेक प्रकार के दर्शन होता है। अर्थ सपनिक भी कहा जाता है, सपनों में भगवान दर्शन दे देते हैं। चित्त यदि निर्मल हो, सपने में दर्शन देते हैं।
और दूसरी क्या है, गोपियों की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साक्षात दर्शन, जैसे हम आंखों के द्वारा आपको देख आज केवल आंख बंद करके मानस, जैसे जोगी लोग आंख बंद करके योग साधन के द्वारा भगवान के दर्शन करते हैं, गोपियां करे ऐसे नहीं। हम लोग जोगी नहीं है, योग के द्वारा हम आपके दर्शन करें। औच्यते नलिन नाभ पदार विंदम जोगेश्वर हृदय विचिंतो अगाधोपदी संसार कुपति। तो जोगियां गोपियां कृष्ण के क्या बोल रहे हैं, ये आप जो हम लोग जो ज्ञान देना चाहते हो, ये ज्ञान किसके दो, ब्रह्मा जी के दो। औच्यते नलिन नाभ पदार विंदम जोगेश्वर हृदय विचिंतो अगाधोपदी। अगाध बोध संपन्न जो ब्रह्मा है, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा, जो आपके नाभि कमल से प्रकट हुए, उसके ज्ञान दो। क्यों, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे, देखा ना, हैं ध्यान कर रहे हैं। बोले ध्यान शिक्षा हम लोग को मत दो, योग ध्यान आदि हम लोग गोपियां नहीं चाहती है। इसलिए औच्यते नलिन नाभ पदारविंदो जोगेश्वर हृदय विचिंतो अगाधो बोधि संसार कूपपतित उद्यान। इस संसार के बाप ब्रह्मा आदि जो देवता लोग जो है ध्यान किस लिए करते हैं, नहीं संसार से उद्धार होने के लिए है। संसार दुखमय जालामय, इस संसार से उद्धार होकर होने के लिए तो ध्यान करते हैं। गोपियां क्या करें, ये हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोग तो क्या है, हम लोग आपके ध्यान तो बहुत दूर का था, दूर की बात है। चिंतन करने से हमारी हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ध्यान पहले कहाँ पर होता है, ध्यान के एक स्तर होता है? ध्यान कहाँ से लगता है, चरण कमल से ध्यान होता है, फिर नाभि कमल से जाता है, फिर जाता है मुख कमल से जाता है? ध्यान की एक नियम होता है, पहले भगवान के क्या ध्यान करो, चरण कमल के ध्यान करो, इसके बाद भगवान के नाभि कमल के ध्यान करो, इसके पश्चात भगवान के मुख कमल के ध्यान करो। शास्त्र में ऐसे ही लिखा है। तो चरण कमल के ध्यान के द्वारा क्या होता है ना, संसार के जितने प्रकार के जो है आसक्ति कट जाए, दूर हो जाए। जोगी लोग कठोर तपस्या आदि के द्वारा क्या करना चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं। संसार दुखमय है, संसार के दुखमय है कि सुखमय, दुखमय। जिस दिन अनुभव हो जाएगा, अभी तो हम कह रहे दुखमय, किंतु अभी दुखमय नहीं लग रहा है, सुखमय लग रहा है। अभी कहते हैं हम संसार दुख है, किंतु वास्तव वो दुख नहीं हो रहा। जिस दिन दुख के हम दुख समझ लेंगे, उस दिन छूट जाएगा। आज समझ भी नहीं। अभी हम लोग ये जो कार्य है, ये केवल मान क्या बोले, लिप सर्विस कह रहे हैं हम, किंतु वास्तव में जिसको कहा जाए मरकट वैराग्य आता है, मरकट वैराग्य, शशान वैराग्य, फल्गु वैराग्य, ये सब वैराग्य आ जाता है। वो क्षणिक काल के लिए, ये हम कर रहे हैं संसार दुखमय है, ये क्षणिक का, क्षणिक समझते हो, मैंने टेम्पररी। जैसे शमशान में शरीर दाह हो रहा है, देख रहे हैं हम, अपने परिवार कोई व्यक्ति मर गया, और देख करके हमें क्या होता है, वैराग्य अधिक तांग, इतने संपत्ति, इतने धन वैभव छोड़ करके कहाँ चले गए लोग, हैं? आज समझिए नहीं है? तो वही सोच करके हमें क्या था, हमारे भी ऐसे एक दिन तो आएगा, हमारे शरीर कैसे जलाया जाएगा, है? और घर में आकर के सारे बेटा क्या करते, पिताजी के संदूक में कितना पैसा है, बैंक में सारे 4 बेटा और 5 बेटियां, 9 व्यक्ति मिल करके सब देखभाल करते रहते। संसार में घाट से जो है स्नान करके आते हैं ना, वह तो वैराग्य हो गया था, और इधर आकर के सब अपने अपने हिस्सा के लिए ही करने, किसके पास कितना है देखो,
हो जाता। इसलिए दुख के जिस दिन हम दुख रूपे हम उन करेंगे है, तब से संसार अपने आप छूट जाएगा। गोपियां वो कर रही हैं, हम तो ऐसे ही नहीं हैं। हम के संसार में दुख है, कष्ट भी नहीं है। गोपियां क्या कर रही हैं? बोले हम लोग के संसार नहीं है तो संसार के दुख कहाँ है? ना हम लोग के बेटा है ना बेटी है। वास्तव में गोपियों को पुत्र करना नहीं था। यदि विचार की जाए तत्व विचार में गोपियों कोई पुत्र संतान कोई नहीं था। गोविंद छोड़ करके कुछ नहीं जानते, इसलिए गोपियों के संसार कूप नहीं था। संसार कूप कहाँ था? इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी के बोलो, ये उपदेश जो कह रहे हैं ध्यान के लिए बता रहे हो। ध्यान के द्वारा क्या होता है? मन एकाग्र होता है ध्येय वस्तु में। ध्यान के ध्येय वस्तु में मन एकाग्र हो जाता, वन पॉइंटेड हो जाता है, तो मन इधर उधर जाते नहीं। बोले तुम्हारे चरण कमल के ध्यान करने के साथ ही हम के हृदय द्रवीभूत हो जाता है, बिगड़ जाता है। क्यों? जिस चरण के द्वारा तुम क्या बोले गायों के पीछे जब दौड़ते हो, अटति जद भवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंजते जड़ उदृक्षताम पक्ष की दृश्य। देख गोपियों कितने सुंदर हो। कली लता मनम कांत गच्छसि। कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, बा गोचारण करके जब लौटते हैं और उसके देख करके गोपियों के हृदय क्या द्रवीभूत हो जाता है। ये कृष्ण माने क्या बोलते हैं, विदाउट शूज है, बेयरफुट है, वो कैसे गायों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इतने ममता गोपियों की। ये खाली पैर में कृष्ण कैसे चलते हैं? अरे गायों के तो पैर में खुर है, वो कहीं कांटे के ऊपर चले, पत्थर के पर चले, उनके कुछ लगता नहीं। और कृष्ण के चरण कैसे है? अत्यंत जो है कोमल है। और वो गोपियां कैसे, एक कृष्ण कैसे चलते रहते। इसलिए गोपियां करें आपके चरण के स्मरण होने के साथ ही साथ हम लोग हृदय द्रवीभूत हो जाए, और आपकी ध्यान हम करेंगे। कृष्ण गोपियां कह रहे हैं किसको कैसे उपदेश देना है तुम जानते नहीं हो, लोग हंसाइए मारो। एक व्यक्ति विद्वान है और उसके कोई कह रहा है जो तुम पढ़ाशुना करो, ABCD लिखो। अरे एक विद्वान व्यक्ति है, कहाँ गो, इसलिए गोपियां कह रही हैं लोग हंसाइए मारो। तुम तो उपहास कर रहे हो हम लोग। तुम्हारे चरण के स्मरण करने के साथ ही साथ हम लोग हृदय द्रवीभूत हो। जोगी लोग क्या करते हैं? आपके चरण स्मरण करके काम क्रोध संसार से मुक्त होना चाहते हैं। जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासं गतितम उद्ग्रतंति संतो तदवन्न रिक्त मतो जते निरुद्ध श्रोतागणस्तम अर्णं भज वासुदेव। श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी पाद कार्य हैं। वासुदेव कृष्ण की केवल चरण कमल की स्मरण करके भक्त लोग संसार से उद्धार हो जाते हैं। आज जोगी लोग क्या करते हैं? जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासं गतितम उद्गतंति संतो तदवन्न रिक्त मतो जते निरुद्ध श्रोतागणस्तम अर्णं भज वासुदेव। जोगी लोग केवल कठोर वैराग्य आदि करके अपनी इंद्रिय आदि जो है संयम करना चाहते हैं, किंतु क्षणिक काल के लिए है। क्या बोलते इलास्टिक है ना, है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वो छोटा हो जाता है, वापस हो जाता है। बोले जोगियों की उसी प्रकार स्थिति हो जाती है। तात्पर्य क्या है? जो वास्तव रूप में जोगी लोग जो है योग साधना आदि के द्वारा अपने इंद्रियों के जो है वो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। उतने समय तक वो करते हैं जिस समय तक वे योग साधना करें। किंतु भगवान की चरण कमल की स्मरण करके चिंतन करके भक्त लोग संसार में महासमुद्र के पार करके चले जाते हैं।
पदं पदं वत्स पदम। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार गाय के खुर है ना, बछड़े के खुर, खुर समझते हो? चलिए, हाँ, पुप्स ऑफ द कप्स, उसमें जितना पानी है, बोले संसार भी समुद्र में वैसे ही है, और उसके कप उसके पार करके चले जाए तो किसी पता ही नहीं लगता। भक्त लोग भगवान के नाम गुण आदि स्मरण करके है ये संसार भी महासमुद्र के कैसे पार करते हैं ना, जैसे बछड़े के खूर में जितना पानी रहता है और उसके कैसे लाग करके चले गए पता नहीं चलता। ये उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए कह रही ये श्लोक आ रहे भागवत में, जो लोग इतने कठोर साधन करते हैं, इसलिए गोपियां कह रही हैं औच्चते नलिन नाम पदार विंदम जोगेश्वरी रो। हम लोग की क्या बीत, कितना सुंदर ये भाव दे, ये तो वे देव हे द्वैत विभु नहीं को बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणई को सिंधु, हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितास्मि भुवोर दिशोर में। गोपियों की कहने की यही तात्पर्य है, आप साक्षात रूप में हमें दर्शन दिए, क्योंकि जहाँ पर प्रेम की एक स्थिति होता है जिसे कहा है उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है, ये याद रखना पड़ेगा। जिब्ब से पाद लिखते हैं गोपियों के हृदय में जो प्रेम है वो कौन सा प्रेम है? उसका साक्षात दर्शन। साक्षात दर्शन यदि नहीं हो रहा वो नहीं करे। ये सपनिक दर्शन बा और किसी के दर्शन जो होता है ये गोपियों को मानने के लिए तैयार नहीं। ये आप साक्षात रूप में हमें दर्शन दिए और दर्शन देख करके हमें सेवा ग्रहण कर। इसलिए प्रार्थना जी इसे हम जो कहते हैं प्रार्थना मूलक, दैनात्म मूलक और लालसामयी पर लालसामयी, लालसा जगह है, लालसा मतलब लॉगिंग, सो मच ग्रीड विल कम है। ये क्या कभी वो क्या ना बहुत लालसामयी कीर्तन है कभी है हाँ, ये सब जो लालसामयी कीर्तन है ऐसे नहीं। ये हमारे हृदय में ऐसे लालसा जगे है। ये लालसा जगेगी कब कैसे? एक तो पोटेंशियल है लालसा जागेगा, दूसरी भगवान की कृपा हो, तीसरी पूर्वजन के संस्कार हो। संस्कार भी चाहिए ना, बिना संस्कार से नहीं होता है, क्योंकि रागानु का भक्ति की कहा जाता है वो लोभमयी भक्ति कहा जाता है। लोभ उत्पन्न होता है उसी प्रकार से कहीं कर श्रवण करके और आपके साधन और भगवत कृपा। रागानु का भक्ति में ये दिखा रहे हैं ये कृपा साध्य हो रहा है कृपा के द्वारा, किंतु कृपा यदि कृपा तो लोभ तो दिखा दिया, किंतु लोभ हो जाने से प्राप्ति हो जाएगा ऐसी कोई नहीं है। लक्ष्मी के तो लोभ हो गया, आज तक भी तपस्या कर रही है। उद्धव की भी लोभ हो गया, ब्रज गोपियों की भाव माधुर्य को देखा कि नहीं देखा है, किंतु ब्रज में रहे ही नहीं। बोले अधुना कृष्णेन पालिता मथुरापुरी। उद्धव विचार करने लगे, देखो ऐसे महान गोपियों के छोड़कर के कृष्ण जब मथुरा में रह रहे हैं, हमें कब छोड़ करके भाग जाएंगे कोई पता ही नहीं। इसलिए अभी कृष्ण मथुरा में है, इसलिए मथुरा चले जाता हूं। इसलिए उद्धव कुछ महीने तक, करीब 10 महीने तक ब्रज में रहे और इसके बाद मथुरा चले गए। और फिर कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद पुनः जो है यही ब्रज में आकर के और वही तपस्या आदि कर रहे हैं। पहले तो 6 श्लोक की स्तुति करके चला गया है। हाँ समझे नहीं, भवती नांग महाभागा विरहेन में अनुग्रहकृत। उद्धव तो इतना ही कह दिया, आप लोग की जो विरह वास्तव हो नहीं सकता है। हे ब्रजगोपीगण, आप लोग जो विरह में जो तड़प रहे हो है, जो आप लोग की जो महाभाव दशा जो है, महिष रूपये और दुर्लभ हो, महिषों के लिए भी दुर्लभ है, ये संभव ही नहीं है।
और आप लोग ये विरह में ये तड़प रहे हैं। ये इसके मतलब क्या है? ये हमें बुद्धि अनुग्रह कर रहे हैं। ये प्रेम की सर्वोत्तम पराकाष्ठा जो कहा जाता है, लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव, प्रेम की सर्वोत्तम पराकाष्ठा कहाँ पर है, ये हमें दर्शन कराने के लिए आप लोग ये विरह दिखा रहे हैं। वास्तव गोविंद के प्रति जो विरह आप लोग के हो नहीं सकता है, माने गोविंद से कभी बिछोड़ नहीं सकते हैं? भगवान से बिछोड़ हो जाना ये संभव नहीं, क्योंकि ऐसे प्रेमिक भक्त हैं। भगवान कहते हैं मेरे छोड़ते सामान्य रूप में क्यों मेरे संप्रदाय मन को छोड़ते नहीं, तो आप लोग जैसे प्रेमिक भक्त आप लोग के छोड़कर भगवान कैसे चले जाएंगे? उद्धव सारे कुछ क्या बोल रहे हैं? ज्ञान के द्वारा बोल रहे हैं। उद्धव जो कुछ भी बोल रहे हैं किससे बोल रहे हैं? अपने ज्ञान से बोल रहे हैं। विज्ञान अभी नहीं हो रहा है। विज्ञान कब हुआ? जब वो मथुरा में आ गए, और मथुरा के फिर कृष्ण मथुरा से द्वारका, द्वारका से जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो विचार करने लगे, हाँ मैं क्या चीज मिला था और क्या चीज मैंने पाया। देखो हाँ समझ गए। ये विरह ऐसी वस्तु जो है उसकी व्याख्या करना संभव नहीं, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखते हैं ये विरह मिलन की जो है सिर पर वो नृत्य करते रहते हैं। विरह ऐसे, क्योंकि विरह के द्वारा ही वास्तव रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। जब तक कोई वस्तु के प्रति हमारा विरह नहीं हो, विच्छेद नहीं, अनुभव नहीं हो रहा है, तब तक हम उसको प्राप्त करें। तो ये समझते जो भाव जो कर रहे हैं गोपियों की, ये भाव जो कर रहे हैं, देखो कितने हजारों साल ये जो आप जो पढ़ रहे जो अच्छी बात है। ये समझते गोपियां हजारों साल तक कठोर तपस्या आदि की, और तब करके फिर ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म लिया। आज बोला था ना लक्ष्मी देवी, ये कृष्ण की रासलीला में प्रवेश इतने सहज नहीं है। कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने के लिए कुछ कंडीशन होता है। एक तो गोप गृह में जन्म लेना पड़ेगा। कृष्ण कहे आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य नाकरी अंगीकार। विशेष कर चैतन्य चरितामृत, कृष्ण कहे आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य नाकरी अंगीकार। रासलीला, ये रासलीला के प्रसंग है। दास सख पास में तो अंगीकार कर लेंगे किसी कुल में हो, किंतु गोपियों की जो है रासलीला में प्रवेश करने के लिए गोपी शरीर जरूरत है। क्या शरीर? गोपी शरीर। और गोपकुल में जन्म दे, ब्राह्मणी को नहीं लेंगे, इसलिए वो ब्राह्मणी को क्या कर दिया, समझा बुझा करके सबको वापिस कर दिया। हम लोग कहते हैं ना बातरोल में है, किंतु वही बात कृष्ण गोपियों के बोले स्वागतम भो महाभागा किम करवामी, आपके स्वागत है, आपके क्या करोगे। ये दोनों शब्द दोनों की बोला, माने ब्राह्मणी से बोले और गोपी से, किंतु ब्राह्मणियों के समझा बुझा करके घर वापिस कर दिया। जाओ, ब्राह्मणी जाना नहीं चाहती है, बोले हमारे पति लोग शिकार नहीं करेंगे। बोले जाओ शिकार करेंगे, तुम जाओ तो तुम्हारे पैर में पड़ जाएंगे सब पति लोग। है देखो गोपियों की समझा चल, और गोपियों की भी एक ही बात बोला, ये आप लोग घर लौट करके जाओ, किंतु गोपियां क्या बोली, पादंग न चलती तो पादंग बोला। अरे पैर के द्वारा थोड़ी हम लोग, अच्छा ठीक है हम चले जाएंगे, पैर के द्वारा थोड़ी चला जाता है, मन तो चाहिए ना। हमारे मन रूपी रत्न के आप तो हरण कर लिया है, उसको तो वापिस करो। मन रूपी जो महान जो मणि को आपने भी कर लिया, हम केवल पैर की तरह नहीं चल सकते। चलने के लिए क्या, मन के साथ पैर के साथ कनेक्शन होना चाहिए। डिस्कनेक्ट हो जाए नहीं, काम नहीं कर हाँ, तो इसलिए कर रहे हैं मन हमारे वापिस कर दो। गोपियां कम नहीं है, इसलिए कृष्ण गोपियों के इसी प्रकार जो है क्या बोले समझा, किंतु गोपियां उल्टा करके कृष्ण के समझा दिया।
है। और अंत कृष्ण गोपियों के साथ रास विरास आदि की ये सब तो दिखा दिया। ये वास्तव बोलो वृंदावन बिहारी। इसको पढ़ो अच्छे तरह से, बार बार पढ़ते रहो। और ये भी बताया कि संसार में जितने भी जीव है उतने ही प्रकार की राग रागनियाँ हैं। हाँ, है ना यहाँ पे संसार में जितने भी जीव है राग भी उतनी ही संख्या। और क्या, जितने प्रकार के जो कृष्ण जो वंशी जो राग जो है माने स्वर ट्यून जो है, जितने जीव है उतने ही रहेगा। सबके एक है, कृष्ण सर्वभाषा भी सब कुछ जानते हैं। चीटियों की भाषाएं भी हैं। सबके भाषा, सबके राग, सब ट्यून, सब कृष्ण भगवान सब जानते हैं। एक नहीं है, हजारों है। जितने जीव है और उतने ही जीवों की राग अलग अलग होता है। सबके गले के स्वर अलग अलग होगा है। बहुत प्रमाण। चलो हम चलते हैं। Very nice, huh?